all of you. Today, we MBISM students, group number 2, will be showing you that how the Chinese market has affected our Indian market, especially over the middle class family over in India. Like we have various Chinese products like Nokia, Samsung phones are there still, but the people are still using the Chinese products. So what is also special about it? And also the Chinese market has so adversely growth that Indian Army is using their products. So what is there so special about it? The video that we have shooted will be telling you all about this. So we will begin with the video. Good evening all of you. I am here at the Chakrota Road at the Nokia store. What are the products you basically deal with? So my name is Deepak Kumar Arora and this is Nokia's variety shop. But we deal in Samsung, Nokia, Micromax, Lava, Spice, LG, all kinds. Sir, what are the proportional sales figure of Chinese product against domestic and overseas product? I compare Nokia. Sir, Chinese product is much competitive in terms of price and technology than other similar products. Chinese product जो होता है Nokia या Samsung के कंपैरिजन में दो प्राइस बैंड में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं. बट वो ये कि क्वालिटी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो Nokia या Samsung जैसा क्वालिटी. The major differences between Chinese and other sets, according to you, in the terms of technological and innovative. मेजर डिफरेंस बस आपको वही क्वालिटी का आ जाता है. इसमें आपको चाइनीज़ में क्या है कि कम प्राइसेस में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं. अगर वही फीचर्स आप नोकिया या सैमसंग जैसे ब्रांड में सर्च करेंगे तो चाइनीज़ में आपको 1500 से 2000 रुपये के रेंज में आ जाता है. डुअल सिम आ जाएगा, ट्रिपल सिम मिल जाएगा. लेकिन नोकिया या सैमसंग में आप जाएंगे तो 4 to 5000 का रेंज पे इतनी चीज़ें मिलता है. बट उनमें फिर आपका जो इनका हार्डवेयर होता है उनका भी क्वालिटी होता है, सर्विसेज होता है, इनका गारंटी वारंटी मिलता है. चाइनीज़ में उस चीज़ का कोई नहीं मिलता, गारंटी होगा ना वारंटी. Have more profit margin according to you. इसलिए बेचते हुए हर डीलर चाइनीज़ ही देखना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि नोकिया सैमसंग का क्या होता है, इनका प्राइसेस जो होता है नेट पे अवेलेबल होता है. चाइनीज़ का जो प्राइस होता है वो हिडन होता है और नोकिया सैमसंग का एक रेंज लाइनअप होता है मॉडल्स का जो कस्टमर भी अवेयर होता है कि ये मॉडल मार्केट में इतने का, मॉडल का नाम पता होता है. चाइनीज़ में 36 वेराइटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शन है, कस्टमर को पता नहीं कि पर्टिकुलर क्या मॉडल आ रहा है, तो मार्जिन हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कस्टमर को. Sir, would you like to comment the grey market created by Chinese product in India and illegal distribution channel? नो डाउट ये इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है क्योंकि इसमें कोई टैक्स वगैरह कुछ पे नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली डीलर तक पहुंच जाता है माल. और जो कंपनी का हम ब्रांड उठाते हैं तो उसके लिए हमें वैट वगैरह एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. तो इंडियन इकोनॉमी को तो अवेलेबल होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सा आज की डेट में इंडिया में बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते महंगे फ़ोन परचेज करने के लिए. ये आपको सस्ते काफ़ी कम रेंज में सस्ते फीचर्स, सस्ते रेंज में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं. तो होना भी चाहिए लेकिन इनके ऊपर थोड़ा बहुत फाउंडेशन भी होना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट IMI वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो टेररिज्म का थोड़ा वो बढ़ जाता है. तो थोड़ा अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस करेगी तो चाइनीज़ भी आना चाहिए मिडिल लोग के लिए जो नहीं परचेज करते. Good evening all of you. I am here in the mobile shop. What's your name? My name is Sumit Jain. Sumit Tyagi. Sumit Tyagi is with me. So Sumit sir, I just want to ask you that what are the proportional sales figure of Chinese product against domestic and overseas According product? to me, 20-25% market share, and other side is not properly effective on Chinese. Okay. Now, according to your opinion, is Chinese product is much competitive in terms of price and technology than other similar products or not? Maybe. It may. Then, what are the reasons behind this, according to you? Because now it's Nokia and Samsung also coming with lower in handset and dual SIM also, and memory card features also. So nobody's going to Chinese. We go for a Nokia phone and Samsung phones. Now, what are the major differences, according to you, between the Chinese and other similar products in terms of technological and innovative specifications? Only for a price. Price. Yeah, only for price. Now, which product sales have more profit and margin, and why, according to you? Because, of course, Chinese is giving so many margins, and his range value very high, and volume is also high. But इतना कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा है. ठीक, बराबर है. Would you like to comment the grey market created by Chinese products in India and illegal distribution channels? Of course, because ग्रे मार्केट का माल हम कहीं से परचेज करते हैं. सपोज अगर हम दिल्ली से ला सकते हैं, गोरखपुर वहाँ से ला सकते हैं. कोई टैक्सेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करना होता है, सब आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. Now, what are your views towards the statement that Chinese product dominated the Indian markets
and products, and grey market adversely affect कस्टमर Indian को economy. 750 रुपये डबल सिम मिल जाता है, डॉचएट मिल जाती है, एक मेमोरी कार्ड ऑप्शन मिल जाता है। वही चीज़ अगर कंपनी में जाए तो 1500 स्टार्टिंग होती है, इफेक्टिव तो करेगा ऑब्वियसली वो चीज़। अच्छा, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये इट्स अ चाइनीज प्रोडक्ट एंड द नोकिया फोन। नोकिया फोन। हाँ 750 एंड 1500 750 yeah with all the features, of course and it is it's a 1500 rupees with all features 1500 rupees. just double Just double. Thank you, sir. Good evening everyone. I am Alok Kumar here in the Sanjay Electronics in Dispensary Road with the Sanjay Bhaiya. संजय भैया, ये आप बेसिकली किस प्रोडक्ट से डील करते हैं? आप किस तरीके के प्रोडक्ट रखते हैं अपनी शॉप में? तो होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती हैं सारी, इलेक्ट्रॉनिक्स में डीवीडी प्लेयर, होम थिएटर वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ये सब होती है। हाँ, आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो ये कौन कौन से ब्रांड के हैं? ब्रांडेड रखते हैं या लोकल प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, ये क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। ब्रांडेड भी होता है भैया, और आपका जो है नॉन ब्रांडेड चाइनीज़ जो आ रहे हैं वो भी आइटम होती हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ज़्यादातर आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो तो इनकी कितनी सेल है, कितनी मार्केट में कितनी वैल्यू है बाकी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट के हिसाब से? चाइनीज़ प्रोडक्ट में जो है भैया रेट वाइज बहुत कम होता है। जो ब्रांडेड से आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे भी इनका रेट वाइज बहुत इनका कम होता है। मान लीजिए एग्जांपल, जैसे कि आपका कोई आइटम अगर वहाँ आप जैसे ये दिवाली में आप लड़ी देखते हैं, चाइनीज़ लड़ी बोलते हैं जिसको, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप उसको बैठा के लेबर लगा के बनाने लगें तो वो इतने में लेबर भी नहीं खर्चा आता है जितने में वो बिक जाती है 20 से 25 रुपए के अंदर। उसमें अगर आप उसकी लेबर ही काउंट करें तो लेबर ही आदमी जो है उसको 100 रुपीज़ में पर डे में एक आदमी बना नहीं सकता उसको। जो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने सस्ते मिल रहे हैं तो उनके पीछे क्या रीज़न है? आप ब्रांडेड वाले इतने महंगे पड़ रहे हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपके साथ? इसके पीछे जो रीज़न है कि मार्केट में इनका चाइनीज़ माल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से इनके रेट कम है और वो जो है कस्टमर उसको चाइनीज़ को ही डिमांड करता है। आपके हिसाब से चाइनीज़ प्रोडक्ट और जो कंपनी के प्रोडक्ट है इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या ये खूबियाँ होती हैं दोनों की अपनी अपनी? दोनों की प्राइस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो बता दीजिए आप। जो ब्रांडेड कंपनी के होते हैं उनके जो है एक तो फीचर वाइज वो सेम रहते हैं, मतलब उनके फीचर लिमिटेड होते हैं। हाँ जी। और उनके रेट जो कंपैरिजन होता है चाइनीज और उसमें लगभग 3 टाइम्स का उसमें फ़र्क आ जाता है। 3 गुना। 3 गुना है। कोई चीज़ अगर चाइनीज़ अगर 1200 रुपये की है और अगर ब्रांडेड कंपनी की लेते हैं तो वो 3500 रुपये की होती है। इतना डिफरेंस आ जाता है इनमें। जैसे आप कोई प्रोडक्ट फिलिप्स का डीवीडी है, ये आपका 3500-3800 रुपये की रेंज में है। पास आता हूँ और इसी में आप लेते हैं चाइनीज़ में तो लगभग 1200-1250 रुपये की रेंज में आ जाता है। ये फ्रंट वाला भैया 1200 का पड़ जाएगा और ये कंपनी का पाइने और फिलिप्स सैमसंग हो गया हमें 3-3.5 हज़ार रुपये के पड़ेंगे, लेकिन क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। फीचर्स सेम है सब, वही है क्वालिटी का डिफरेंस फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है उससे। फिलिप्स के पास फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन उनके पास फीचर ज़्यादा है। मतलब चाइनीज़ के पास फीचर्स ज़्यादा है, कम प्राइस है और फीचर्स ज़्यादा है। अगर कि ब्रांडेड वालों के प्राइस ज़्यादा है और फीचर्स कम होते हैं। ब्रांडेड में रिपेयर इजी नहीं है, रिपेयर सीधा जो है हाँ, आपको सर्विस सेंटर से ही मिलेगी ब्रांडेड में जो सर्विस है। और बाकी जो नॉन ब्रांडेड होते हैं उसकी रिपेयर इजी है, चीप रिपेयर है, हर कोई इजीली लेमैन भी उसको रिपेयर कर सकता है इजीली। अच्छा भैया, मतलब मेन जो डिफरेंसेस हैं वो ये भी है। बाद में सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है वो भी मैटर ब्रांडेड करता है। कंपनीज की सर्विस जो है वो कॉस्टली हो। एक आखिरी सवाल, ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट वगैरह आते हैं इससे हमारा ग्रे मार्केट बढ़ रहा है, तो इससे ग्रे मार्केट पे क्या, हमारे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, भारत की इकोनॉमी पे? देखा जाए तो ओवरऑल आज की डेट में हर लाइन के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या किसी भी सेगमेंट में आप ले लीजिए, हाँ जी भैया। तो हर लाइन में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, चाइनीज़ बॉर्डर इतने ओपन हो गए, इतना मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है। अगर मतलब आप दिल्ली साइड चले जाएं, मतलब तुगलकाबाद साइड, इधर इस साइड में इतने कंटेनर्स आपको रेलवे ट्रैक पे मिलेंगे, इतने कंटेनर्स मिलेंगे, आप अगर गिनती भी चाहें करना तो गिनती नहीं कर पाएंगे। तो दिल्ली की बात है, बाकी और जो आपके इंपोर्ट पॉइंट्स हैं, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, तो यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ओवरऑल मटेरियल सारा बाई डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है। डायरेक्ट इंपोर्ट इतना हो रहा है, तो ये सब काउंट करता है, कंपटीशन बढ़ता है डे बाय डे। इसीलिए कस्टमर चाइनीज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा मतलब प्रेफर करता है, क्योंकि वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका। Good evening all. I am here at Ghantaghar at Frontier Electronics, and
Mr. Vivek. We are here with Mr. Vivek. Sir, if we talk about brands, sir, the unbranded Chinese products, sir, may affect the sales figures of that brands, or according to you, sir? The kind of brand which we are selling, Sony, LG, IFB, so these are like very high branded products. Customer who knows about it, they come and buy this. So Chinese product which they coming in the market, they come in with that category is very different. So the kind of customers who want Chinese product, they are mentally prepared that I have to go for a Chinese product and I'll pay this amount for a Chinese model. And Sony, IFB, these kind of brands, these are very high value brands. So they have very different class of people. They are also mentally prepared that if I'm going to such shop, I'll be paying this much amount for this product. So this is matterless. Because nowadays everyone in India wants a branded product and they are afraid of Chinese product. Either it is of 100 rupees or either it is of 500 rupees. People who they want a very steady commodity, who should last long, should get proper services, service backup, service warranty. So so this is very minute particularly in my showroom, the kind of models which we are dealing with, it is not making any difference. It is not. The Chinese market cannot make any difference whether they get free also. People who are ready to pay, they are paying this amount, and the market of our brand is growing by 30% every year. So I don't think it is affecting it. So at last we have seen how Chinese products affect the Indian market and the reviews of people, but still Indian market is highly affected by Chinese products. At last we have seen some facts and figures related to Chinese products in Indian market.